हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, एक बार फिर तेरे चरणों में आने का सौभाग्य आपने दिया। तो हम वचन सीखने जा रहे पिता, तो हमारी समझ को खोल। प्रभु, हम नहीं जानते आने वाले दिनों में तो किस दिशा में हमें लेकर जाएगा। तेरे वचन की गहराई को समझने के लिए हमारे समझ को खोल। तू हमसे बात कर प्रभु। सब महिमा आप ही को देते पिता, यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं। आप मेरे साथ ये दूसरा तिमोथी नहीं पहला तिमोथी उसका 4 का 1 पढ़ लीजिए। 1 पढ़िए। पहला तिमोथी 4 का 1। ਪਰ ਆਤਮਾ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। आगे ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਤਕਰਨ ਤੱਤੇ ਲੋਹਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। इधर लिखा है, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of demons. यानी अंत के दिनों के निशानी क्या हैं? है कौन कौन? पढ़िए दोबारा पंजाबी में। ਪਰ ਆਤਮਾ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹੈ, आत्मा साफ आखदा है। हाँ, ਭਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾ भूता ਕੇ दे शिक्षा, यानी ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ भूतों की शिक्षाओं में क्या हो जाएंगे? चित्त लगा लेंगे। ये जो हमारे सामने इन दिनों में हो रहा है, जैसे अभी पिछले दिन, अभी यही देख लो ना, एक एक ना, जैसे पहले आपको बताया था सिक्के हैं, क्या क्या है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हम कई बार पढ़ते नहीं ये चीजें। ये इसका नाम क्या है? पीटर पॉपॉफ। नाम तो पत्र से प्रॉफिट है, प्रॉफिट पीटर पॉपॉफ। इसमें है ये एक भाई या बहन, उनके लिए उनके नाम पर एक चिट्ठी है, हाथ से नहीं लिखा, प्रिंट किया, यानी कितना मेहनत करके इट हैज बीन प्रिंटेड। जर्नल, गॉड हैज गिवन मी अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लीडिंग अबाउट योर फ्यूचर। God has given me, and when God speaks to me like this, amazing things always happen. I have a strong leading about your future increase, prosperity, healing, and some amazing blessings. The goals you have longed to attain are about to be placed within your reach. And here we are almost halfway through 2008. 2008 का चिट्ठी है, अभी 2010 में पता नहीं और क्या क्या लिखता हो। Now I can tell you with absolute certainty, your greatest days are still just in front of you. I have been sent by the Lord today to share with you this important word from God. ये किसी कन्वेंशन में आपको बुलाकर नहीं बोल रहा, ये किधर चिट्ठी भेज रहा? आप घर में बैठकर, एंड और उसके बाद जर्नल, you are about to turn the corner and may look like things are coming to an end, but I have this word from God. You are not facing the end, just a bend in the road that leads to something wonderful just ahead. In 2007, so many of your blessings were hindered, but you are now one of God's 2008 potential millionaires. Millionaires, huh? And God has given me this new insight into future events that are about to happen in your life. Listen to this word. Journal, blessings and increases shall come upon thee in all you shall do, and every place the sole of your feet shall tread. Deuteronomy 28:6. See, ये सारा पढ़ने का जरूरत नहीं, but I am just telling you कितना मेहनत करके ये सारा कुछ, हाँ, कुछ भी हो, सिक्का भी दिया है,
Yeah, this is the coin. Yeah. Journal, I am led of God to mention 3 amounts. One will be confirmed by God and you will know in your heart what to do. One is $1002 for your double portion blessing. The second is for $102 for your greatest harvest of return. The third is for the Father, Son and Holy Ghost, $52. This is exactly what I see. Please, if there is just no way you can obey God with one of these amounts, man, don't come before God with empty hands. Let Him lead you to enclose no less than $22, your step of faith offering. One more important step of faith that you must take. See the small packet that contains water from Jordan River. कहाँ गया? जॉर्डन, वही था पन्नी, शायद आप लोगों को मिला था. यर्दन से पानी आ रहा है. Where Jesus was baptized. You must use it exactly as I direct. Take the small sponge, sponge, enclosed, and pour the water on it. See how the sponge explodes. That's what you are going to experience, double portion power and explosive increase. Then use the wet sponge to seal your return envelope to me. Means इसको लेकर, गीला तो हो गया, डबल हो गया ना, इस हाँ उसमें जो पानी था, उसके बाद फिर आपने सील कर देना, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लोसिव हो गया. Then return envelope after you have put the 2 Holy Land coins. ये Holy Land coins हैं. And your best seed gift inside. So, journal, obey God. I have your double portion package of total life increase here waiting. This is God's divine plan for your 2008 increase. Well, I am going to close and minister to some others by letter. But please get your birthday back to me along with 2 double portion Holy Land coins and check below the amount God is leading you to give, your largest seed gift. Then seal your return envelope just as I have instructed. ये तो एक धंधा हो गया. अगला, what is this? ये गुरमीत है. जर्नैल तो वाइफ का नाम है, नहीं जर्नैल भाई का नाम है. हाँ, इसमें मोमबत्तियां, मोमबत्ती से क्या करना? हाँ, Sister Gurmeet, no one could ever make me doubt God had a divine purpose in connecting you to this ministry. You see, I can't just bond with anyone. No. But when I sit down to write to you, I feel a special connection, like I am talking to family. Today we are going to take a candle of faith and find our way out of darkness, distress and despair. Are you ready? इसमें step 1, take this small candle I have blessed with prayer and press it gently against your forehead. यानी इसको लेकर मत्थे में लगाना. Close your eyes and ask God to light up your mind with new ways of success, happiness, achievement, above all, God ideas. Then be ready to walk in the light. Step 2, open the prayer folder and print your prayer needs in your own hand. Then pray the anointed prayer God has given me for you. Be sure and put the date in the blank space. This is an important step of obedience. Gurmeet, believe me, when I say God is ready to shine some new light on ways to bless your finances and all your money matters, I have asked the Holy Spirit. He has told the Holy Spirit to speak to you about an enlightenment seed of $50, $25 or $100. You must listen carefully to the voice that speaks to you from within and then sow accordingly. If you do, you will sow the right seed. So these are all garbage. और उसके बाद बाकी इनके तेल हैं,
जस्ट दिस लास्ट वन। ये ग्लव्स भी आए हैं, तेल भी आए हैं। इसका चिट्ठी माल नहीं कहा। इसमें क्या है, ये ग्लव्स हाथ में पहनकर ये चिट्ठी में हाथ की निशान बनाई है। तो ये ग्लव्स पहनना है और उसके बाद उसको क्या करना है। और ये है व्यवस्था विवरण 28, यानी बाइबल में रखने से काम नहीं चलेगा, ग्लव्स पहनकर इसके कागज में ही रखना है। सो ये सब मैं आपको क्यों बताया, दिखाया। देखो तेल भी आया हुआ है, रेवरेंड पीटर पॉपॉफ, उधर तो प्रॉफिट है। ये होली लैंड एनॉइंटिंग ऑयल है। रेवरेंड वो विषय अभी लेंगे आपको। रेवरेंड का मतलब है भय योग्य, भयानक। अगर मैं अपने आप को बोलता हूं आई एम रेवरेंड, तो आपने मेरे सामने खड़े नहीं होना। नो, आपने क्या करना है, ये घुटना टेकर ये मत्था किधर लगाना है, जमीन में। प्रेज लॉर्ड नहीं बोल सकते। मैंने बोला आई एम रेवरेंड मैथ्यू सैमुअल, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, बो डाउन, और ये मत्था किधर लगाना, जमीन में। क्योंकि आप कौन है, भय योग्य। वचन में रेवरेंड केवल एक ही है, वो कौन है, अपार्ट फ्रॉम गॉड नो मैन ऑन अर्थ हैज द गट्स टू कॉल हिमसेल्फ रेवरेंड। If you hear someone saying I am a reverend, all that you do is fall down on your। लेकिन आज सबसे ज्यादा रेवरेंड किधर मिलते हैं, परमेश्वर भाई के योग्य नहीं, हम सब ये, यानी ये सब अगर ऊपर पहुंच गए ना, God will have to step down from the throne because all the reverends have come। हाँ, ये REV क्यों लगाते हैं, टैक्स उतना देना नहीं पड़ता। That's the secret of REV। I am a minister। बाकी लोग REV लगा नहीं सकते। सो रेवरेंड लगाया तो क्या है, टैक्स में से इनको छूट है। सो ये सारा कुछ मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, ये खुलेआम किधर चल रहा है, कलीसियाओं में चलते वक्त हम लोग जो बैठकर वचन सीख रहे हैं। क्यों, that we get strengthened in our faith। ये तो मैं चिट्ठी किसी विश्वासी भी नहीं है, बपतिस्मा भी नहीं लिया है व्यक्ति, he is a new, जस्ट मैं आज किसी के घर वचन बोलने गया और उनके घर से मिला और वो बेचारे डरते हैं, ये फाड़ भी नहीं रहे, फाड़ नहीं सकते, वो डरे कि फाड़ देंगे तो पता नहीं क्या आ जाएगा, हमारे घर के ऊपर कोई सजा आ जाएगी। इस कारण है कनाडा, अमेरिका, यूरोप हमारे हाथ से चला गया। यीशु का धंधा कर कर इन लोग पेट पालते हैं। इसलिए प्रभु आपको हिंदुस्तान से उठाकर इधर लाया, ताकि इधर हम लोग वचन में क्या हो जाए, मजबूत होकर इन अंग्रेज को और बाकियों को सिखाना है असली में यीशु कौन है। सो ये सारा ट्रिक हमारे सामने चलते वक्त हमारा प्रार्थना क्या होना, क्योंकि आप पढ़िए 2 कुरिन्थी 11:4। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਯਸੂ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅਸਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ उसका 3 से पढ़ लीजिए, अब उसका 1 से पढ़ लीजिए, 1 से। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਸਹਾਰੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੀ ਅਣਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੜਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ ਵਾਂਗੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। हाँ, इसका मतलब क्या है, मेरे अंदर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ है, अणख है ना। For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband that I may present you as a chaste virgin to। मेरे अंदर एक ईश्वरीय जलन है कि आपका ध्यान किसी और के और ना मुड़े। आगे 3। ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਚਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ
ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਵਿਗੜ ਜਾਣ। हाँ, शैतान कैसे हवा के पास आया? बड़ी चालाकी के साथ आया। इसी तरह मेरे और आपके पास कौन आएगा? हम एक एक के पास शैतान आएगा। जैसे हवा के पास आया, सवाल उसने हवा का परीक्षा आपको मालूम है कैसे किया? क्या क्वेश्चन किया? हाँ, क्या क्वेश्चन क्या था? किस तरह? हाउ डिड इट टेम्प्ट ईव? ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ नहीं खाना? वो तो आराम से बोला, लेकिन उसको शैतान को क्या मालूम नहीं है? शैतान को अच्छी तरह मालूम है कि परमेश्वर ने बोला है इस बगीचे का एक पेड़ का फल खाना नहीं। लेकिन मालूम है चालाकी से कैसे आए? वो क्या बोलता है, क्या कोई भी पेड़ का फल, है ना? उत्पत्ति 3 अध्याय निकाल लो। How does he twist? He will come to you in the same way. और आपने और मैंने सिंहासन में बैठना है तो अगर कलीसिया में होना है तो, कलीसिया बोलने से हम बोलने वाला चर्च बिल्डिंग नहीं, कलीसिया एक ही है। इसलिए मैं पिछले दिन बोला मैं पेंटिकॉस्टल नहीं, मैं मेथोडिस्ट नहीं, मैं कैथोलिक नहीं, मैं मेनोनाइट नहीं, मैं प्रेस्बिटेरियन नहीं। चर्च कितनी है? जस्ट वन चर्च। और वो जो चर्च है वो मसीह की दुल्हन है। अगर उस दुल्हन में आपने शामिल होना है तो आपने शैतान की सारी युक्तियों के ऊपर क्या करना है? जय पाना है। जय पाओगे तो ही किसमें होंगे? कलीसिया में। वो प्रभु बोला हुआ कलीसिया, इसलिए यीशु ने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अथोलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो हम जो देखने वाला ये चर्च नहीं है। चर्च दुनिया में कितने हैं? ओनली वन। और उस चर्च का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज उस चर्च का भाग कोई इधर आराधना करता है, कोई उधर आराधना करता है, कोई इधर करता है। अलग अलग जगह में हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन आपने उस दुल्हन में शामिल होना है तो शर्त क्या है? नए सिरे से जन्म लेना है, पानी का बपतिस्मा, आत्मा का भरपूरी और जयवंत जीवन पाना है। जयवंत का मतलब शैतान की सारी युक्तियों के ऊपर हमने क्या करना है? I have to get victory over all powers of darkness. Then only will I sit with him on the throne. So शैतान के ऊपर जय पाना है तो टेम्पटेशन तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? टेस्टिंग परमेश्वर करेगा एंड शैतान क्या करेगा? टेम्पटेशंस लाएगा। तो इधर हवा के पास कैसे आया? देखिए 3 का 1, उत्पत्ति 3 का 1। ਸੱਪ ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਾਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ? किसी वृक्ष तो ना खाओ। ना खाओ। उसको अच्छी तरह मालूम है कि क्या है, एक ही पेड़ का फल नहीं खाना। घुमाकर मारा किधर? सोचने को। जैसे पहले भी आपको वो सिखाया, मनुष्य के अंदर क्या है? शरीर, प्राण, आत्मा। वो विषय पिछले बार सिखाया था आपको। सो प्राण में क्या क्या है? हमारी सोचने की शक्ति, हमारी भावना और हमारी इच्छा शक्ति। 3 चीजें हैं। तो शैतान ने तीर किधर मारा? सोच में मारा। सोच में मारने के कारण हव्वा का रिएक्शन क्या था? नहीं, परमेश्वर ने बोला देख, छूना भी नहीं और उसको तोड़ना भी नहीं और क्या भी नहीं करना, छूना भी नहीं। तो शैतान का लक्ष्य है हमारे किधर मारता है? सवा सोच में। इसलिए वचन में कुरिन्थी में लिखा, मन में उठने वाली हर एक विचारों को क्या करते हैं? हम कैद करते हैं। विचार आते हैं। सो अगर हम ये विचारों को अगर कैद नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? शैतान के जाल में फंस जाएंगे। सो विचार के ऊपर आप जय कैसे पाओगे? मुसीबत उधर आती है। विचार तो आते हैं, आप ये नहीं बोल सकते विचार नहीं आना। विचार आना चाहिए। विचार आना पाप नहीं, लेकिन विचार में गिरना पाप है। अब मैंने पुष्पेंद्र जी के हाथ में एक अच्छा घड़ी देख लिया, मैंने देख तो लिया, देखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे भी ये चाहिए कर कर विचार आ गया, तो मालूम है कितना खतरनाक है। जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं।
ट्रैफिक लाइट में खड़े हो गए, मैंने बगल में कार देखे, कार तो बहुत खूबसूरत है। मेरी कार 2 साल हो गए, 2 साल हो गई। इंडिया में तो 15 साल गाड़ी घिसते हैं, तब भी रजिस्ट्रेशन दोबारा करा कर चला लेंगे। इधर तो 3 साल के बाद गाड़ी चलाना, गाड़ी तो चलेगी 15 साल, हम कितने साल चला लेंगे? हाँ, 2 साल 3 साल के बाद हमारा मन क्या हो जाता है? हमें फिर क्या चाहिए? कैसे आइडिया आ गया? ट्रैफिक लाइट में खड़े थे या किसी की गाड़ी, कितनी अच्छी है। मैं क्या करना था? अगर आत्मा में मजबूत होता, मैंने बोला कार तो अच्छी है, तो क्या है, कार तो इट्स गुड, इंसान ने अच्छा गाड़ी बनाया, बट आई डोंट नीड इट। या यू कैन सिट इन योर ओन कार एंड से, मैं अगर इंडिया में होता तो पता नहीं साइकिल होती है एटलस की या हीरो की, हाँ, अपनी रोटी की डब्बी आगे टांगी होती तो पेडल मारकर जा रहा होता। मैं कनाडा में बैठा हूँ, कार में बैठा हूँ, हे प्रभु तेरा प्रेम। वो विचार के ऊपर हमने क्या किया? जय पाया। सो हमारे जीवन में विचार, शैतान तीर मारेगा और शैतान अच्छा तीर मारता है, वो निशाने रखकर मारता है। सो मैंने और आपने क्या होना? वचन में मजबूत। मेरे बाप की आदत क्या है, अच्छी तरह सबसे पहले सीखना। तो हम अपने विषय में वापस जा रहे हैं। कल हम लोग जो सीखे विषय, इस्राएल को परमेश्वर क्या कह रहा? चलिए निर्गमन 12 का या 12 का 1, 2, वो हम लोग उसको थोड़ा रिवाइंड करके फिर आगे निकलेंगे। या ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹरून ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰੇ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ हर घर पीछे एक लेला लवे। हाँ, अभी हम धीरे धीरे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, प्रार्थना के साथ समझना, हमारे विश्वास का आधार। सो अभी इधर प्रभु इस्राएल को क्या कह रहा है? अब नया कैलेंडर, नया शुरुआत, पुरानी बातें सब खत्म। मेरे और आपके जीवन में भी जब प्रभु आया, जब मैं यीशु के क्रूस के पास आया, वो मेरे जीवन का क्या है? नया शुरुआत है। देखिए प्रभु का अपार कृपा, देखिए हमने अपने जीवन का बाजा बजा कर रखा था। We were enemies of God। हम कल हमने वो एफएसी 2 अध्याय में हमने पढ़ा, हम परमेश्वर से क्या थे? परमेश्वर से हम, वो पढ़ लीजिए एफएसी 2 का 1। और ये शायद को, ये इस बात को छोड़ना नहीं, हम वचन सीखते हैं सिस्टमैटिकली। वी स्टडी हु वेर वी, वेयर वाज आई। एफएसी 2 अध्याय उसका 2 और 3। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ अपने शरीर दियां कामना विच अगे दिन कटदे सां। इसके साथ आप पढ़िए एफएसी 4 का 18 भी, 17 और 18। उपरंत मैं ये आखदा हाँ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿਅਰਥਾਂ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅਨੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ परमेश्वर ਦੇ जीवन ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਹਨ। हाँ, तो मैंने और आपने, हम पहले कैसे थे? हमारी बुद्धि क्या थी? बंद थी। हम परमेश्वर से क्या थे? दोबारा उसका 18 पढ़िए, देखिए वचन, हम पढ़िएगा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹਨੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਨੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸਨ। मन के कठोरता के कारण। जरा सोच कर देखें, मैं और आप भी मन में क्या थे? कठोर थे, ढीठ थे।
हमारी बुद्धि बंद थी, अंदर से मन क्या था, ढीठ था, कठोर था, हमें तोड़ा उसने, बीच में कठोर होकर मारा बीच में, ताकि हम क्या करें, अपने जीवन की कीमत को क्या कर लें, समझ लें मैं किधर को भाग रहा था, मेरा निशाना क्या था। परमेश्वर ने हम एक एक के जीवन में क्या किया। वो बोर्ड है, बोर्ड 1 मिनट रख देंगे तो फिर आपको उसका उदाहरण एक मिनट समझा देंगे। मिस्र में है, गुलामी कर रहा है, छूटने का कोई आशा, अपने आप कुछ नहीं कर सकते। यानी परमेश्वर उनको, अब आप देखिए इस्राएलियों के जीवन में मिस्र में ओले कैसा है, ओले गिरे, कितनी विपत्तियां आ गई तो भी फरो क्या बोल रहा है, मैं जाने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शुरू में तो मैं उस विषय में नहीं गया, पहले बोलता था कि तुम्हारे जानवर रहने दो, तुम जाओ, बीवी बच्चे रहने दो। धीरे धीरे मूसा उनको क्या बोला, एक खुर भी इधर नहीं रहेगा। वो सब विषय मैं उनमें नहीं जा रहा, लेकिन ये डंडे जब पड़ गए तो भी फरो क्या बोल रहा है, जाने नहीं दूंगा। यानी आदम ने जब पाप किया, एदन बगीचा में आदम ने जब पाप किया, किसकी गुलामी में चला गया, पाप के कारण चला गया। कोई आशा है, निकल सकता है, पाप तो कर लिया, देखिए बड़े आराम से युक्ति में क्या हो गया, फंस गया, अपनी स्व इच्छा से फंसा है। शैतान को क्या नहीं कर सकता, दोष नहीं दे सकता। शैतान ने फल तोड़ा, फल किसने तोड़ा, हवा ने खुद तोड़ा। शैतान ने सिर्फ उसके मन में क्या डाला, फल खुद तोड़ कर खाई है। अब जब फंस गए फिर निकल सकते हैं नहीं। परमेश्वर अदन बगीचा में इंसान को जान से मार सकता था, कारण झाड़ी के पीछे छुपा, पहना क्या है, पत्ते। और परमेश्वर भी आकर जब पूछता है, हे आदम तू कहाँ है, किसने किया, तब एकदम उंगली उठाकर क्या बोलता है, जो स्त्री, यानी उंगली किसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर उठा रहा है। तूने ये औरत मुझे नहीं दी होती तो मैं पाप नहीं करता। देखा, पहना क्या है, पत्ते। स्कर्ट थी, गाउन था, अभी तो फ्रॉक बन गया। पति पत्नी को जरा देखे, महिमा चला गया तो भी इन्होंने अरेंजमेंट कर लिया। अब इंसान को भी देखो, इतना ढीठ है, आत्मा तो बोलती है तू पापी है, पापी है, कोई दिक्कत नहीं, अपन चिड़िया को दाना दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मीट मछली अंडा छोड़ देते हैं, प्याज भी छोड़ देते हैं, नाम जप लेते हैं तो किधर पहुंच जाएंगे, दिखेगा परमात्मा। नाम जपते जपते बैठे, क्या दिखने के लिए, सनातन, वो दिखेगा, सनातन सदगुरु दिख जाएगा, महिमा चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या सिलाई कर लेंगे। इसलिए वचन में लिखा है, उद्धार हमें अनुग्रह से मिला है, उसका कृपा नहीं होता तो हम कितने भी अच्छे कर्म कर लेते। अब मैं भाई निर्मल से ही बात कर रहा था, जीवन में समस्या आ गई, लंगर में गए, रोटियां पकाई, दूध छोड़ कर आए, लड्डू दिए, किधर किधर क्या क्या नहीं किया। अंजीर के पत्ते बड़ी जल्दी सिलाई कर लिए, और फिर उंगली किसके ऊपर, तूने ये बीबी मुझे, परमेश्वर उसी समय उसको क्या कर सकता था, उसका अनुग्रह। हे प्रभु, ये इतना बड़ा ये पृथ्वी, ब्रह्मांड को जब देखे तो ये पृथ्वी इतना लंबा चौड़ा, बस ये पृथ्वी को उठाकर कैरम बोर्ड की कॉइन की तरह ये मारा तो चला गया होता, कोई अता पता भी नहीं मिलता। अब ये हैती में जो भूकंप आया, कौन बात कर रहा है, मैं अभी भी सिंहासन में हूं, ओबामा तेरे हाथ में नहीं है, अमेरिका के नाक के नीचे मारा, अब तो सारे हैती में उतरे, परमेश्वर कल सैन फ्रांसिस्को को पकड़ ले, क्या करेंगे, किधर किधर भागोगे। बोलने का मतलब, हमारी स्थिति इस्राएल मिस्र में कैसे थी, फरो क्या बोलता, मैं जाने नहीं दूंगा, सवाल ही नहीं उठता।
हम भी शैतान की गुलामी में पड़े थे, शैतान छोड़ने को तैयार था, और हमें कैसे खुश रखा था? शैतान ने हमें निराश करके थोड़ी रखा था। हम क्या थे? खुश थे? नहीं थे? अगर हमारे जीवनों में डंडे नहीं पड़ते तो हम क्या थे? अपनी जिंदगी में खुश थे ना। निर्मल जी किधर भाग रहा था? ये निर्मल जी हो गया, ये अवतार जी हो गया, ये रूपलाल जी हो गया, किधर भाग रहे थे? कनाडा में आए हैं। वाह, ये अपने पिंड जैसा थोड़ी है, इधर तो बिजली भी नहीं जाती, पानी की भी दिक्कत नहीं, रास्ते में गाय भी नहीं खड़ी, हाँ, कोई हल्ला हुल्ला कुछ नहीं, पावर कट भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वैंकूवर एयरपोर्ट से जब बाहर निकले थे, पहली बार जब इधर गाड़ी चलाई तो, और आज तो निर्मल जी के हाथ में पासपोर्ट भी आ गया। अब किधर के सिटीजन? कैनेडियन सिटीजन। कितनी खुशी आ गई है ना। हम सबकी हालत ऐसे थी, हाँ, हम ऐसे थे, बड़े मस्त थे। किसके पीछे? इधर आए, पहला नोट जब कैनेडियन डॉलर मिला कितने खुश थे, याद है? पहला जब डॉलर का नोट हाथ में आया, ऐसे भाग रहे थे। फिर मन क्या था? अवतार जी को पैसे कमाना है, फिर किसी का घर देख ले, मेरे को भी ये घर, किसी ना किसी तरीके। हम सब भाग किसके रहे थे? रूपलाल जी किसके पीछे? मनी, मनी, संसार के चीज, घर, घोड़ा, मकान, कार, ये सब के पीछे हम क्या कर रहे थे? बड़ी तेजी से। हाँ, हम में से कोई विश्वासी था, या हम में से कई तो विश्वास में भी नहीं आए, मत्था टेकने जाते थे। क्यों मत्था टेकते हैं? मेरी ये मुरादें पूरी हो जाए। खुद तो मैं कितना भी भागूंगा, मेरी मुरादें पूरी होने वाली, मैं मत्था कितना भी टेकना मैं टेक लूंगा। दुनिया जाती है मत्था टेकने, कोई ब्यास जाता है, कोई किधर किधर जाता है। क्यों? मेरी क्या हो जाए? मुरादें पूरी हो जाए। मुरादें पूरी होती है नहीं होती है? बोले, होती है नहीं होती है? बोली, होती है नहीं होती है? मुरादें पूरी होती हैं? मत्था टेकने से होता था मुरादें? ये तो इनके पीछे क्यों जाने लगे? क्योंकि जब समस्या ने घेर लिया, नहीं तो थोड़ी तेल के पीछे जाते। जब सब कुछ ठीक था तो पीटर पॉपॉफ, पता नहीं क्या उसका नाम, पीटर पॉपॉफ, हाँ, इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी। हमारी तो गाड़ी अच्छी, मत्था टेकते थे, खुश हो जाते थे, सारा काम हमारा अच्छा चल रहा था। सर्वशक्तिमान ने हमारे जीवन में मारा कहीं? निर्मल जी बेरी उठा रहा था, आज बता रहे थे, बेरी उठाने होकर गिर गया, गर्दन में ऐसी चोट लगी, इधर के डॉक्टरों को भी देख लिया, उधर उधर सारी। अब सिस्टर को ना बिजली के करंट लगते थे, हाँ? हम सबके साथ अलग 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 अलग, सबको एक जैसे नहीं पकड़ा, सबको अलग अलग करके उसको मालूम है पकड़ना कैसे। हम सबको एक एक को इधर इधर जब जीवन में मारा कहीं, तब हमारे होश आए, मेरे जीवन में ये क्यों? आज भी हम किसी घर में गए, वो भी यही बोलते थे, मेरे जीवन में ऐसा क्यों? ठीक कर दो, ठीक कर दो। उसने एक मतलब से मारा ये, और ये मतलब से मारा किसके लिए? ताकि इन इच्छाओं के पीछे भागने वाले निर्मल की गाड़ी राइट को नहीं मुड़ी, लेफ्ट को नहीं मुड़ी, किधर? यू टर्न था, मन फिराया। हमने क्या बोल दिया? सिस्टर जी से भी मैं आज बात कर रहा, क्या बोला हमने? हे प्रभु, मैं पापी। इसलिए वो एफएसी 4:17 पढ़िए, क्या लिखा? ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ। आगे को ऐसी चाल ਨਾ ਚੱਲੋ, पौलुस विनती कर रहा है, अगाहो ऐही चाल ਨਾ ਚੱਲੋ। पहले का चाल कैसे था? पहले का चाल कैसा था? ऐसे जा रहे थे इच्छाओं के पीछे। अब क्या बोलता है? ऐसी चाल ना चलो, क्योंकि मन के ढीठ मरे हुए इस हालत में हम थे। सो मेरे को और आपको, हम अभी इसराइलियों के जीवन को हम देख रहे हैं, मिस्र में से
परमेश्वर अब इसराइल के जीवन में मूसा के द्वारा इनको क्या बोल रहा है, तुम्हारे लिए नया कैलेंडर,